Hello guys, welcome to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. Today we are going to continue the 9th class science chapter, which is motion. So yesterday we have discussed about the introduction and the various parameters on which the motion can be studied. First one is distance, second is displacement, third is speed. Now today we are going to discuss the term is velocity and acceleration. First, speed with direction. When we want to measure the speed magnitude and along with its direction, then we use the quantity velocity. Velocity is a vector quantity since it can measure both its magnitude as well as direction. There is another term if the velocity of an object is changing at a uniform rate. Then we, instead of measuring velocity, we measure average velocity. Average velocity is initial velocity plus final velocity upon 2. That is basically what means by average. Initial velocity is represented by u, final velocity is represented by v. Its SI unit is meter per second, which is same as that of speed. Next is acceleration. It is defined as the rate of change of velocity of the body with time. Now, this is a new parameter. What is meant by acceleration? Suppose we are moving a vehicle very fast towards reaching to the destination. Then our time taken will be to reach the destination will be reduced. Right? एक है कि अगर हम हमारी स्पीड कांस्टेंट रखें से 40 किलोमीटर्स पर आवर तो हमारे को टाइम मिलेगा जो लगेगा वो फिक्स लगेगा. सपोज हम उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम हमारी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारी जो हमें टाइम लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड दैट पैरामीटर्स विच मेजर द रेट एट विच वी मूव अवर व्हीकल इज नोन एज एक्सेलरेशन. यही एक्सेलरेशन है, राइट. So it is a vector quantity since it has magnitude of direction both and its SI unit is meter per second square. यहाँ पे एक important point है इसका formula कि acceleration is final velocity minus initial velocity upon time. Because क्यों ऐसा है? Because we are measuring the change in the speed. Speed में change कितना है वो हमें measure करना है. Final velocity मैंने पहले ही बताया था, it represented by v. Initial velocity is by u and acceleration is v minus u upon t. अब यहाँ पे दो केस बनते हैं. सपोज फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, उस टाइम पे क्या होगा. एंड सपोज द केस इज रिवर्स, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी. एक एक करके हम दोनों केस को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला केस, इफ v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. Then the acceleration is positive and direction of velocity along the direction of velocity. इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने वेलोसिटी इंक्रीज करी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कहाँ हो रहा है, आगे हो रहे हैं, राइट. इसका मतलब यही है. सपोज सेकंड केस में अगर v इज लेस देन u, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, then acceleration is negative and opposite direction of the motion. Now it is called retardation. Initial velocity ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से. ये केस कब आएगा, जब हम ब्रेक लगाते हैं. ऐसा ही होता है, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी को हमें स्टॉप करना रहता है तो हमें फाइनल वेलोसिटी हमें कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी. आप कंसिडर करके देखिए, ब्रेक लगाते हैं हम व्हीकल को स्टॉप करने के लिए तो कौन सा केस होता है, ये वही केस. इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी. एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव जीरो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहाँ पे उस केस को हम कहते हैं रिटार्डेशन, ना कि एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द graphical means we can represent the motion. So let's first we'll discuss distance time graph. डिस्टेंस, ये हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. अगर ऑब्जेक्ट का पाथ इस तरह से ट्रेस होता है वर्टिकली अपवर्ड्स
तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन की आपको डेफिनेशन पता है, इक्वल इंटरवल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल टाइम इंटरसेप्ट करता है। स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या मेजर करके देता है हमें? स्पीड। स्लोप का मतलब ये स्लोप होता है, कितने एंगल पे ये बना हुआ है। इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो हमें बताता है, उसका स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी, राइट। और एक और दूसरी चीज़, अगर ग्राफ में डिस्टेंस सेम है एज पर द टाइम इज़ मूविंग फॉरवर्ड, दैट मीन्स क्या होता है? एक ही जगह पे सेम ऑब्जेक्ट है पर टाइम बढ़ता जा रहा है, उसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट रेस्ट, बॉडी इज़ एट रेस्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकेंड, velocity time graph. This is the velocity time graph. If you see velocity time graph, if the graph of the motion of an object is like upwards, then this slope of this will gives a acceleration. Velocity time graph slope gives acceleration. This is an important point. Second important point, the area covered under the velocity time graph gives displacement. Similarly, if it is not the speed time graph, then it will give area covered will give distance. Velocity time graph displacement देता है area covered under it, and अगर speed time graph होगा तो वो distance cover देता है। ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तीन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि है v इक्वल्स, फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम टेकन। सेकेंड आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ टाइम टेकन, a इज़ एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, वरना डेरिवेशन भी होता है इसका इक्वेशंस का। अब हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे। नाउ अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in the time. So यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक एक्सेलरेशन है, दूसरा डिस्टेंस। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि इस वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने कन्वर्जन किया है और हमने वेलोसिटी निकाल ली है। टाइम 5 सेकेंड। सारी फार्मूलेज में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कोई भी फार्मूला है उसमें जो भी यूनिट लगेगी वो ऐसा यूनिट में ही वैल्यूज़ पुटअप होंगी, वरना आंसर गलत आएगा। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी मैंने बता रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, उसमें आएगा फार्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 37.5 मीटर। Coming on to the last topic of chapter, that is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन किया गया उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body is travels equal distances in equal interval of time over a circular path, this its speed is uniform. एक सेम स्पीड से घूमा जाता है, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे स्पीड क्या होगी? सेम। पर ध्यान रहे कि ये स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन नहीं। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड सेम है, डायरेक्ट स्पीड सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। Uniform circular motion is an accelerated circular motion. The direction of motion at any point, at any instant of time is along the tangent to the circular path at that instant. डायरेक्शन कैसे होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, राइट,
तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, यही वो पॉइंट मतलब कहने का मीनिंग है। स्पीड कैसे निकालेंगे, 2πr/t। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कैसे होगा, सरकमफेरेंस पे घूम रहे हैं, सरकमफेरेंस इज 2πr, वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड अपॉन टाइम टेकन। So thank you guys for watching this video. Do like, subscribe and share the video.